My name is Jatin Kevlani and I belong from Thalassemia Welfare Organization as chairman and founder, and I am also a director of KK Rice Mills Private Limited. थैलेसीमिया आपकी डेडली डिजीज़ नहीं है। आप दुआ करो मालिक को कि आपके बच्चे को कुछ और नहीं हुआ, आपका बच्चा थैलेसीमिया हुआ है, चलो हो गया, उसको आप मैनेज करो, मायूसी नहीं करो। थैलेसीमिया का बच्चा हर कुछ कर सकता है। नादरा में एक इम्प्लीमेंट कर दें कि भाई जो NIC बनाने आएगा वो थैलेसीमिया का टेस्ट लाएगा तो उसकी NIC बनेगी, और NIC पे डिक्लेयर कर दें थैलेसीमिया माइनर और नॉर्मल या मेजर या कोई भी आपका उसका स्टेटस हो थैलेसीमिया का उसके ऊपर, तो ये एक आपका ईजीली आप जो है ना सॉर्ट आउट हो जाएंगे। I was just 3 months old when I was diagnosed with thalassemia. And how did I diagnose thalassemia? How my parents did know about me, about my thalassemia status? Actually, I was not feeling well when I was just 2.5 or 2 months old, and I was belonging at that moment. I was belonging from low income family. I was not that rich and I was not a businessman. I was just a low income family member, and I live in a small town, Thana Bula Khan, which is like 2 hours before Hyderabad. So I lived there, and my parents took me to some local doctor, and when they saw that I'm not eating well and I have nausea and I have dizziness, and like I was not very active in any activity or any movements, so doctor suggested me to take him to Aga Khan Hospital, Karachi, and test him for the thalassemia. And when they bring me in Aga Khan, there was a doctor. He was a very brilliant doctor, and he's still in Aga Khan. He's working there. So he asked my parents to test him for the thalassemia test, which is electrophoresis. So I was tested with thalassemia, and I was diagnosed with thalassemia major when I was just 3.5 months old. So at that moment, my parents were a lot worried, and after that they took me back to my village, and I was transfused with the blood. First blood transfusion I took in 1991 January. 1991 January was my first blood transfusion I took in a small NGO located in Karachi, and it was for poor families and needy families who doesn't afford the cost of the thalassemia blood transfusion or any medicine. After then, my family was not aware about thalassemia. They took me back to my village, and I was like they were just worried about that what is thalassemia. They never heard about that thalassemia, nor any of our family members or any of our relatives have this thalassemia. So my family was worried, my parents were worried, like I was the eldest child of my family, and they said that, and from some doctors in my village and in interior Sindh, they said that he will not live more than 12 years, he cannot live more than 10 years, so he cannot study, he cannot travel, he cannot do anything, he is a special child. My parents was very worried, and then they again took me to hospital Aga Khan, Karachi, and they said that we have to fight for this child, and we have to give the full focus on this child, and inshallah he will be a better child than others. So that is like how I was diagnosed with thalassemia, and how did I manage myself. Now I am 29 years old, and it's just because of my parents' support, my parents' experience, and what they supported me, now I am here. Actually, I already told you that I belong from low income families. My background was like that. So when my father take me to any NGO in thalassemia where I was used to take blood transfusion, I used to travel every month from my village to that center, and I took blood transfusion, and then I go back same day in a local public transport to my village. So I used to see all the people, all the children and the parents who were like जिनकी माएँ वहाँ पे आती थी, और वो उनके 4 बच्चे होते थे, और वो मैं जब 12-13 साल का था, जब मैं देखना शुरू की सारी चीज़ें, तो मैंने कहा जब भी मुझे अल्लाह ताला ने कुछ दिया
अभी चलो मैं अपनी लाइफ कर रहा हूँ, अपनी फैमिली सपोर्ट हो रही है, जब भी अल्लाह ताला ने मुझे कुछ दिया तो मैं इनके लिए कुछ करूँगा। देन इन 2009 आई वेंट टू अ कॉन्फ्रेंस इन सिंगापुर। I met with one of my friend Soeb Azam. So he was already running an organization, Thalassemians Welfare Organization, and we were Facebook friends since 2006. But we met in 2009 in Singapore in a Thalassemia International Conference, and then we decided that he was in Dubai and he was supporting many Pakistani patients by sending them funds or medicines and many things. Then I said that I am in Pakistan and I want to do something for thalassemia children, and I have courage, I have support and everything. So he said, okay, you can run Thalassemian Welfare Organization in Pakistan. So in 2009 when I came back to Pakistan, so one patient came in my office. I met with him and his parents were with him. He said that Jatin bhai, I just want to die. I was shocked why he's saying like that. He said, from only me I am thalassemia major and my 4 members of my family, they are worried about me. My brother always ask everyone that please donate blood for my brother, donate blood, and somebody speaks abuse language to him that why क्यों हम आपको blood donate करें, आपका भाई है, भले मरे, हमें क्या है। मेरी बहन वो वहाँ पे मेरी मेडिसिन्स वगैरह के लिए बोलती रहती थी कि थैलेसीमिया का बच्चा है, मेरा भाई थैलेसीमिया है, मुझे मेडिसिन चाहिए, क्योंकि एक थैलेसीमिया के बच्चे की मेडिसिन 15 से 18,000 रुपये पर मंथ कॉस्ट आती है उसकी, और हर फैमिली के लिए इतना इजी नहीं है उसको मैनेज करना। और थैलेसीमिया मोस्टली लो इनकम फैमिलीज़ और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि फैमिली मैरिजेस, कज़न मैरिजेस की शादी होती हैं तो उसमें ज़्यादा होती है। तो बहुत मुश्किल टास्क है। जब उसने मुझे ये बोला कि मैं मरना चाहता हूँ, मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बाप सब इस काम में लगे हुए हैं और इनके लिए कुछ और टास्क रहा ही नहीं है, यही रहा है कि मुझे ज़िंदा रखना है, तो मैं ही मर जाऊँ तो वो 4 बंदे कुछ और काम कर सकेंगे। तो मैंने कहा भाई देखो आप ऐसा नहीं बोलो, और उस पेशेंट से मेरी थैलेसीमिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का कैरियर स्टार्ट हुआ 2009 में। एंड चलते गए फिर हमने जब बहुत सारे मसले मसाइल आए, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ हमारे ऐसी हैं, इंडिया चले जाओ आप, पाकिस्तान चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, बांग्लादेश, वहाँ के लोगों की साइकी है, अगर कोई चीज़ फ्री मिलती है ना तो उसको मिसयूज़ होता है। तो वो मिसयूज़ हमारे साथ भी होना शुरू हुआ, पर मुझे पता था क्योंकि मैं उस फील्ड से निकल चुका हूँ, उस फैमिली उस लेवल से मैं निकल चुका हूँ, मुझे पता होता है कि कहाँ पे हमें मुश्किलात आ सकती हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे, बच्चे मेडिसिन मेरे से लेके सेल करते थे, उनके पेरेंट्स, बच्चे नहीं, उनको दवाइयाँ नहीं खिलाते थे और बोलते हम दवाइयाँ खिला के। हमने उनको पकड़ा, फिर हमने उनको छोड़ा, फिर हमने उनको बोला कि आप हमें खाली रैपर्स और खाली इंजेक्शन ला के दो, फिर हम आपको दूसरी इंजेक्शन या मेडिसिन देंगे, वो भी हमें मिल गई। अब हमने कहा यार इनको कैसे पकड़ें। फिर इन दी एंड मैंने कॉन्फ्रेंस सबके साथ बुलाई और सबको मैंने बोला कि आपके साथ मसला क्या है, आप क्यों सेल करते हो, कोई आपका रीज़न है, आपको पैसों की शॉर्टेज है। बोला देखो ये एक बच्चा थैलेसीमिया है, ये एक बच्चों को दवाई नहीं मिलेगी तो मर जाएगा, उसके बदले में अगर हम 4 भूखे सोते हैं तो हम 4 मरेंगे। तो हमारे लिए ये मर जाए, हम 4 भूखे खाना पी के खाएँ, हम हेल्दी रहें, वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, हमारी फैमिली बचेगी उस एक की वजह से। तो एक अगर अल्लाह ताला की राह में चला गया और अगर 4 अगर हम लोग बच जाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैं सुना, मेरे आंखों में आंसू आ गए कि यार ये बंदे की बात तो सही कर रहे हो। फिर मैंने उसको बोला कि यार नहीं आप बताओ क्या। उस दिन के बाद ये मैं कहानी बता रहा हूँ 2011-12 की। मैंने कहा आपको हम राशन भी देंगे, आपके बच्चे के एजुकेशन भी कराएंगे, भले आपके दूसरे बच्चे हों, नॉर्मल हो, आपको अगर कोई और कहीं घूमना फिरना है वो भी हम कराएंगे। उसके बाद मैंने जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनके इंटरव्यू में मैंने क्वेश्चनरी डाल दी कि आपकी इनकम क्या है, आपको मेडिसिन तो हम देंगे, आपकी इनकम लो होगी तो आप वो मेडिसिन बेच के 15-18 हज़ार रुपये आप वो इनकम में डालोगे। तो ये चीज़ें जब से हमने डाली हैं तो बच्चे ज़्यादा हैप्पी। आज मेरे बच्चे 89 चिल्ड्रंस मेरी NGO में रजिस्टर्ड हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी, दे आर गोइंग टू स्कूल्स एंड दे आर फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स इन स्कूल, दे स्पीक इंग्लिश मोर देन मी and they are not like rich like in royal families, and they live in Liari, they live in Sadar, they live in Interior Sindh, they live in Peshawar, they live in Kohat, and they speak English more than me, and they are position holders in their schools, in colleges. So
if anybody supports any thalassemia and doesn't say that you are ill, you have disease thalassemia. Thalassemia is not a disease. Thalassemia is a condition where you have to take blood transfusion every month. So if you take blood transfusion and along with that you take iron chelators, because taking regular blood transfusions, there's iron in the blood. It comes in our body and it slowly it deposits in our organs, heart, liver, spleen, our brain and our skin. So skin gets darker, our face is bigger and our teeth come out. So these are the conditions which thalassemia brings to us because of iron overload. And if you take regularly iron chelators, you take blood transfusion, hemoglobin above 9 or 8, then you are just like normal. You can see me. I traveled more than 52 countries. More than 52 countries I have traveled alone for my company marketing. I'm the marketing director of my company. So I have to travel, and I also go for the vacations as well with my wife, with my family. So thalassemia is not a disease. This is just a psyche of the people, of the human being, that I am ill. You are not ill, you are more powerful, and God has blessed you. He has seen some ability in you. That's why He blessed you with thalassemia. If you are thalassemia, you can do more. Don't go to anyone that I am thalassemia and gain your sympathy. This is negative points. I myself, I'm 29 years old. I never gain sympathy from my family, from my friends. They treat me like normal child. If we go for scuba diving, if they going, I can go as well. They will not say you are thalassemia, you sit in the boat and you cannot dive. I can dive. Even my one of friend, he has also done skydiving. I don't think so that normal human being can do skydiving. She did the skydiving. So thalassemia is basically a condition. If you have courage, if you feel yourself strong, you can do anything. For my vision as a thalassemian and as my thalassemia career, I just want our country to declare as zero thalassemia. Like if you go to Iran, you go to UAE, they have declared themselves zero thalassemia cases, new cases, because they have made the policies with the help of government, with the help of NGOs, with the help of other organizations, because they have made a very good implement on the policies, and they have made that you have to test yourself before marriage. And even if you go some country, that if you are doing any bachelor or any master, you are not awarded with a degree unless you have thalassemia test. So they have done this type of policies with the government, organization, educational institutes, and same I want to bring here. In our Pakistan, there is a bill passed in the National Assembly, Sindh Assembly and many other assemblies. You cannot do marriage before thalassemia test. If for example, I'm going to engage with my cousin, in Pakistan there are big psyche that you have to do marriage with your cousin. So if I am going to marriage with my cousin, so my parents or this is like I'm saying the real bitter truth of our country. People say no, बेटा आपका टेस्ट नहीं होगा थैलेसीमिया का. इवन बच्चा अगर एजुकेटेड है, उसको अवेयरनेस है थैलेसीमिया के बारे में, वो अगर पेरेंट्स के पास जाता है कि मेरी इंगेजमेंट आप कर रहे हो, पहले वाइफ का और मेरा टेस्ट कराओ, लड़की का और लड़के का, तो वो उसको चुप करा देते हैं कि यार तुमने अगर थैलेसीमिया का टेस्ट कराया, अगर तुम खुदा न खास्ता माइनर आ गए, हाँ, तो आपको शादी नहीं मिलेगी. लोग बोलेंगे ये बीमार है, हालांकि थैलेसीमिया माइनर इज़ नॉट अ डिजीज़. मेरे फादर मेरे मदर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं, पर अगर दो माइनर शादी करते हैं आपस में तो 25% चांसेस होता है थैलेसीमिया का बच्चा होने का. और यही हुआ मेरे पेरेंट्स. कज़न मैरिज नहीं है मेरे पेरेंट्स की, पर एक अनफॉर्चुनेटली खुदा की तरफ से एक था और वो हो गया. बट क्या था, अगर वो उस वक्त 1990 में कोई ऐसा शऊर ही नहीं था. अब तो 2020 में हम बैठे हैं, हम 2020 में अगर इतनी एजुकेशन आ गई है, सोशल मीडिया आ गई है, तब तो फेसबुक और व्हाट्सएप का तो नाम ही नहीं था. ईमेल्स भी लोग कोई मुश्किल से किसी के पास अगर लैपटॉप होता था तो वो तो भाई अपने आप को खुदा समझता था, प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर समझता था. अब तो हर चीज़ है.
अगर वो बोलता है मेरा टेस्ट कराओ तो उसके वालिदैन उसको चुप करा देते हैं। ये हमारे यहाँ सर्कमटेंसेस जो बने हुए हैं ना, ये हम सबको डुबोएंगे और इससे थैलेसीमिया ख़त्म होना ही नहीं है। एक ये मसला हो जाता है, शादी नहीं करेंगे, और ये एक गलत साइकिल बनी हुई है कि थैलेसीमिया माइनर अगर आपका आ गया तो आपके बच्चे को शादी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आप अवेयर शऊर पैदा करें अपने रिलेटिव्स में और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं। आप जितना इसको फैलाएंगे उतना ये हम ज़ीरो थैलेसीमिया कर सकेंगे, क्योंकि एक थैलेसीमिया का बच्चा पैदा होना इज़ नॉट अ बिग डील। बच्चा पैदा तो हो जाएगा, पर यार आप क्या एक सुई चुभने से अच्छा है आपको शादी से पहले एक सुई चुभ जाए, आपका टेस्ट हो जाए और आप अपने माइंड में बना लो कि यार चलो मैं माइनर हूँ, मुझे माइनर से शादी नहीं करना। ये एक आप कड़वा घूंट पी लो, ये कड़वा घूंट है, आप पी लो। भले आपको एक लड़की नहीं मिलेगी, 10 मिल जाएंगी, दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, पर जब आपको बच्चा होगा ना थैलेसीमिया का, उस दिन आप बोलोगे यार मैं इस जहर के कुएं में डूब के मरता तो ज़्यादा अच्छा था, मैंने बच्चे को जन्म दिया है। उस बच्चे को जब आप देखोगे कि इस बच्चे को डेली सुइयाँ लग रही हैं और वो डेली परेशानी में, उसको ब्लड कम होगा तो वो परेशान हो जाता है, उसको दवाइयाँ खानी है, तो थैलेसीमिया की लाइफ इतनी ईजी नहीं है, पर ये कि कॉम्प्लिकेटेड है। पर आप उसको हिम्मत से करो, आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हो, फैमिली सपोर्टिव है, तो आप इजीली जी सकते हो। मेरे दोस्त हैं 60 प्लस 70 प्लस मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके ग्रैंड चाइल्ड हैं, उन बच्चों के, उनके जो मेरे दोस्त हैं थैलेसीमिया मेजर हैं, हैप्पीली लाइफ जी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनके ग्रैंड चाइल्ड हैं। तो ये जो गलत साइकी लोगों के जहन में बनी हुई है, ये गलत है। तो मेरा विज़न यही है कि एक तो ज़ीरो थैलेसीमिया करना है, गवर्नमेंट के साथ और किसी के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनानी है। उससे पहले भी मैंने एक मैसेज दिया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो हमारे प्रेसिडेंट थे ममनून हुसैन को, मैंने उनको मैसेज दिया था कि आप नादरा से मिलकर एक चीज़ बनाएं। आप नादरा में जो NIC बनाने जाता है तो 18 ईयर्स के बाद जाता है ना, आप उसके पास जाएं और नादरा में एक इम्प्लीमेंट कर दें कि भाई जो NIC बनाने आएगा वो थैलेसीमिया का टेस्ट लाएगा तो उसकी NIC बनेगी, और NIC पे डिक्लेयर कर दें थैलेसीमिया माइनर और नॉर्मल या मेजर या कोई भी आपका उसका स्टेटस हो थैलेसीमिया का उसके ऊपर। तो ये एक आपका ईजीली आप जो है ना सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा यार इसकी NIC पे स्टेटस क्या है। अगर फिर कोई मैरिज करा लाता है, आप उसको अंदर जेल में डालो, उसको सज़ा दो, उसकी पॉलिसी बनाओ। तो हुआ कुछ भी नहीं, बातें हुई, उसके बाद ना नादरा सामने आया ना कोई सामने आया। अगर ये बन जाता, देखो कोई NIC बनाने जाता तो बेफॉर्म लेके जाता है अपने पेरेंट्स की, तो उसको एक थैलेसीमिया का टेस्ट कराने में क्या जाता है। NIC इज़ अ नेसेसरी थिंग, वो आपकी नहीं बनेगी तो आपको लीगल राइट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे, तो वो तो हर कोई बनाएगा कुछ भी करके। लोग जाते हैं NIC बनाने के लिए, नहीं बनता तो हज़ारों रुपए की रिश्वत दे के आ जाते हैं। तो ये तो मज़े से टेस्ट करवा सकते हैं, और गवर्नमेंट अपने सेंटर्स बना दे हॉस्पिटल्स में कि भाई थैलेसीमिया का टेस्ट यहाँ से होगा, सब्सिडाइज रेट रख दें उसमें, तो वो कर सकते हैं हम लोग। तो वो मेरा एक मैसेज था कि इस तरह हम थैलेसीमिया को ख़त्म कर सकते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को आप अपने बोर्ड में लो, वहाँ पे जो डिग्री लेने आए उसका आप टेस्ट पहले कराओ, फिर डिग्री मिले। तो क्यों नहीं देगा? जो लाखों रुपए खर्च करके डिग्री ले रहा है, तो हज़ारों रुपए की टेस्ट करके आपकी डिग्री मिल सकती है ना आपको। वो टेस्ट दे के भाई ये लो आपका स्टेटस कंप्लीट हो गया, उसकी डिग्री पे आप नोटिफाई कर दो कि ही इज़ कैरियर और नॉट, स्टेटस उसमें लगा दो। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर इम्प्लीमेंट हो जाएं, मेरी तो हमेशा यही विश रही है कि कोई ऐसा काम यहाँ पे करूँ, जितनी मेरी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, कि मैं थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ऐसा काम करके जाऊँ कि उनका एक तो यहाँ पे कोई नया बच्चा पैदा नहीं हो, और जो बच्चे हैं उनको ऐसी लाइफ मिले जो दुनिया में कहीं नहीं मिल रही हो। एक और चीज़ यहाँ पे आजकल बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि पीपल आर नॉट डोनेटिंग ब्लड जस्ट बिकॉज ऑफ fear and scare of COVID-19, that if we donate the blood we can expose with the COVID-19 corona. So it's not right. अगर आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो इट्स नॉट राइट कि आपको लाजमी कोविड हो, नहीं हो सकती कोविड, आपको कोरोना वायरस आपको नहीं लग सकती। अगर आपको देखो काफ़ी ऐसे सेंटर्स हैं जो आपके घर में आके आपकी ब्लड डोनेशन ले रहे हैं। काफ़ी हॉस्पिटल्स ने फैसिलिटी स्टार्ट की थी क्योंकि पेशेंट्स इतने हैं थैलेसीमिया के अपने पास कि उनको ब्लड की डोनेशन चाहिए। उनको ब्लड, उनके लिए समझो ब्लड एक ऑक्सीजन है। हमें खाना ना मिले हम जी लेंगे, पर हमें ब्लड ना मिला तो हम मर जाएंगे। तो ये समझो हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है। काफ़ी लोगों ने ब्लड डोनेट करना छोड़ दिया था कि हमें कोरोना ना हो जाए और मसले मसाल ना हो जाए, कुछ हम हॉस्पिटल जाएंगे एक्सपोज हो जाएंगे। आप नहीं जाओ, आपके घर पे आके वो डोनेशन ले रहे हैं आपसे।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बाहर निकलो। आप थैलेसीमिया के बच्चों के लिए या किसी भी अपने मुल्क में कैजुअलिटीज़ भी बहुत होती हैं, कोई बहुत सारी इमरजेंसीज़ भी हैं और डिलीवरीज केसेस हैं, उसमें आपको बहुत ब्लड चाहिए होता है। तो आप उनकी खातिर एक देखो ना, एक ब्लड आप देते हो बैग, तो उसमें से 3 जानें बचती हैं। उसमें से आपका वाइट ब्लड सेल्स निकलता है, प्लाज्मा निकलता है, आपका रेड ब्लड सेल्स निकलते हैं, तो 3 जानें बचती हैं उसमें। तो ब्लड देने में कोई हर्ज नहीं है, उसमें आपकी सेहत और ज़्यादा अच्छी होती है। आप जब ब्लड डोनेट करते हो आपका इम्यून स्ट्रॉन्ग होता है ज़्यादा, तो उससे आप और कोरोना से ज़्यादा बच सकते हो। आपका जब इम्यून स्ट्रॉन्ग होगा, आप विटामिन सी विटामिन डी नहीं खाओ, आप ब्लड डोनेट करो, तो आपका और ज़्यादा ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। और वैसे बहुत शॉर्टेज है अभी। पहले हमेशा क्या होता था, जब रमज़ान शरीफ आता था तो उसमें लोग रमज़ान की वजह से रोज़े रखते थे, तो ब्लड की डोनेशन में शॉर्टेज आ जाती थी। पर अब क्या है, कोरोना की वजह से, गर्मी की वजह से लोग बाहर ही नहीं निकल रहे। तो मेरी इन सब से एक हाथ बांध के एक रिक्वेस्ट है और उनसे एक मैं भीख मांगता हूँ कि आप सब बाहर निकलो और ब्लड डोनेट करो। इनको बहुत शदीद ज़रूरत है। आज भी मेरे पास इतने डेली मेरे पास 2-3 कॉल्स आती हैं, जतिन भाई ब्लड नहीं मिल रहा, बच्चे की HB6 है, बच्चे की HB5 है। तो मैं उनको जो ऐसा सोचते हैं ना कि यार ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, आप बीमार हो जाओगे, तो उनको मैं एक चैलेंज देता हूँ कि आपकी बॉडी से हम ब्लड निकाल के आपकी हेमोग्लोबिन हम 4-5 रख सकते हैं। आप सिर्फ यहाँ से कोई 10 मीटर चल के दिखाओ। इन बच्चों की हिम्मत है जो 4 और 5 पे चल रहे हैं और खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं, पर क्या करें, वो मजबूरी है, बेचारे गरीब हैं। अगर उनके पास पैसा होता तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसे दे के लेते। उनके लिए आप सोचें थोड़ा, और अपने मुल्क की खातिर, अपने इन बच्चों की खातिर आप आएँ, इनको ब्लड डोनेट करें। और ब्लड डोनेशन से ज़्यादा कोई सवाब का काम ही नहीं है। तो लास्ट में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा मेरे जो थैलेसीमिक भाई हैं, बहनें हैं, और जो उनके पेरेंट्स हैं, वो उनके पेरेंट्स हैं, मेरे भी पेरेंट्स हैं, तो वी बिलोंग फ्रॉम सेम फैमिली। हम लोगों की एक ही अम्ब्रेला है जिसके नीचे हम खड़े हैं। अगर वो अम्ब्रेला हिलती है तो हम सब हिलते हैं। तो इन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को कम ना समझें एंड मायूसी ना करें। थैलेसीमिया कोई बीमारी नहीं है। अगर आपको कभी मायूसी होती है ना कि यार मेरा बच्चा थैलेसीमिया है या यार ये मेरा बच्चा मर जाएगा, तो मैं अपनी 29 ईयर्स में जब इंजेक्शंस मेडिसिन खा के जब कभी कभार इंसान का डिप्रेशन में पड़ जाता है, यार ये क्या चक्कर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ। मैं जब हॉस्पिटल जाता हूँ तो वहाँ पे जाके मैं ऐसे पेशेंट देखता हूँ जो बेचारे बेड से उठना चाहते हैं पर उठ नहीं सकते, इतने लाचार होते हैं। तो मैं बोलता हूँ यार थैलेसीमिया आपकी डेडली डिजीज़ नहीं है। आप दुआ करो मालिक को कि आपके बच्चे को कुछ और नहीं हुआ। आपका बच्चा थैलेसीमिया हुआ है, चलो हो गया, उसको आप मैनेज करो, मायूसी नहीं करो। थैलेसीमिया का बच्चा हर कुछ कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है, शादी कर सकता है, घूम फिर सकता है, खा पी सकता है, जो उसको मर्जी हो कर सकता है। मैं बता रहा हूँ, स्काई डाइविंग कर सकता है, स्कूबा डाइविंग कर सकता है, पानी के 100 मीटर अंदर भी जा सकता है, आसमान से कूद भी सकता है। तो थैलेसीमिया दे आर टाइगर्स, दे आर हीरोज़, रियल हीरोज़ ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आपको ये मैं बोलता हूँ कि आप मायूसी ना करें। और थैलेसीमिया के पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है कि आप अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज़ से ना रोकें। काफ़ी ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे हैं मेरे पास जैसे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को खाने पीने में रोकथाम लगा देते हैं कि इसमें आयरन है, इसमें नहीं है। तो खाने पीने में कोई ख़ास आयरन नहीं होता। आप ब्लड से ज़्यादा आयरन किसी में नहीं है। आप उनको खाने पीने की जो चीज़ें खाने दें, जो एक्टिविटी में वो पार्ट लेना चाहते हैं आप उनको एक्टिविटी में पार्ट लेने दें। उनको आप कहीं पे भी किसी चीज़ में ना रोकें कि यार नहीं ये मेरा बच्चा बीमार है और बाकी बच्चों को आप करने दे रहे हो। ये हो जाएगी डिस्क्रिमिनेशन। उस बच्चे में एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी कि यार मैं बीमार हूँ। तो क्या है, एक बंदा जब अपने आप को बीमार समझना शुरू करता है ना, तो एक आम इंसान भी बोले ना उसको बुखार आ जाए तो वो सारा दिन बुखार बुखार करता रहेगा ना, तो वो जीते जीते मर जाएगा। तो आप इसको नहीं बोलो कि बीमार हो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी नहीं बोला बीमार है, और किसी ने मुझे बीमार मेरे पेरेंट्स के सामने बोला उसको अच्छी तरह सुनाया है कि ये बीमार नहीं है, ये सही भला, आपको कोई तकलीफ़ है तो इससे बताओ। तो ये मेरे मैसेजेस हैं सबके लिए कि आप बच्चे को कभी भी कमज़ोर ना समझें। उसको बोलें कि भाई यू कैन डू इट, आपको करना है और उसको करने दें। उसकी मेडिसिन टाइम पर रखें, उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइम पर रखें, और आपका बच्चा कुछ भी कर सकता है। और मैं जैसे देखो ना, मेरी
कुछ ज़िंदगी में मेरे लिए एक ऐसे लम्हात आ गए थे कि मैं अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस नहीं कर सकता। एक एनजीओ के पीछे मैं इतना मदहोश हो गया था कि मैं सारा दिन घूमता रहता था और अपनी मेडिसिन और अपनी टाइम नहीं खाता था। तो मेरी बॉडी में आयरन ओवरलोड हो गया था, मेरी दिल 25% बचा था, मेरा लिवर 10% बचा था। उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, एमआरआई होती है, तो वो इस तरह बची थी। मैं जब लंदन गया तो मैंने वहाँ स्कैन कराया तो डॉक्टर परेशान थे कि तुम 8 आवर्स की फ़्लाइट लेके यहाँ पहुँचे कैसे हो। उसी दिन डॉक्टर्स ने, अगर आप ये देखोगे, मेरे को पिक लाइन लगाई है, ये यहाँ से कनेक्टेड है मेरे हार्ट तक। और देखो फिर भी मैंने एक हिम्मत नहीं आ रही। इस पिक लाइन में डॉक्टर ने मुझे बोला कि 1 साल तक तुम्हें घर से बेड से नहीं उठना है और तुम्हें घर में रहना है, इसके हाई रिस्क इन्फेक्शन। उसके बाद भी मैं 4 अपने बिजनेस टूर कर चुका हूँ, 8-8, 10-10 आवर की मैं फ़्लाइटें ले चुका हूँ इसमें, मेरी वाइफ के साथ, मेरी फैमिली के साथ या मेरे बिजनेस टीम के साथ। तो क्या है, एक फैमिली सपोर्ट थी मेरे को और मैंने दुनिया को करके देखा। आज माशाल्लाह मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है इस पिक लाइन को लेते हुए। अब मेरा तो दिल चाहता है इसको निकालूँ ही नहीं, ये मेरा तो भाई बन गया है दूसरा। तो ये चीज़ें हैं कि आप अगर अपने आप में हिम्मत रखो तो आप दुनिया की हर चीज़ कर सकते हो। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि मैं बीमार हूँ, तो बीमार मतलब अल्लाह को प्यारा, तो बीमार कोई नहीं है, ये अल्लाह ताला की नेमत है। इससे आप फ़ायदा उठाना शुरू करो कि यार मुझे थैलेसीमिया मिली है तो मैं इसमें कुछ करके दिखाऊं दुनिया को कि यार नहीं, मुझे थैलेसीमिया है तो मैं करके। आज मुझे थैलेसीमिया नहीं होती, शायद मैं एक नॉर्मल बिजनेसमैन होता या एक रॉयल फैमिली में बिलोंग करता हूँ तो मैं मज़े से घूम रहा होता, अपनी मज़े अयाशियाँ करता होता। पर आज मुझे थैलेसीमिया है, तभी मुझे दुनिया सुनना चाहती है ना, तभी मुझे दुनिया देखना चाहती है कि यार एक मैं मैसेज क्यों देता हूँ। मुझे तो काफ़ी दोस्तों ने बोला कि यार तुझे थैलेसीमिया, तू छुपा दे, किसी को बता नहीं, तेरे लिए आगे मसले होंगे, तेरी शादियाँ नहीं होंगी। नहीं, मैंने कहा क्यों बताऊँ, क्यों छुपाऊँ, मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया सुने कि थैलेसीमिया एक डेडली डिजीज़ नहीं है। तो बस ये मेरे सबके लिए मैसेज है, पेशेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव के लिए कि प्लीज़ थैलेसीमिया का टेस्ट कराओ शादी से पहले। और अगर आपका बच्चा थैलेसीमिया माइनर है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है, वो बीमार नहीं है, उसकी शादी कराओ किसी नॉर्मल बंदे से एंड आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। थैंक यू।